پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آج شب آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار آداب بجا لاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عید نزول روح القدس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس خوبصورت موقع پر آپ کے ساتھ مل کر کی گئی دعاؤں اور پرستش کے وسیلہ سے بابرکت ٹھہر سکوں، اور پھر خداوند کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھی جو آج پاک روح کی تحریک سے ہم باہم مل کر سیکھنا چاہتے ہیں۔ کلیساؤں میں سے دنیا بھر میں اکثر آج کے دن عید نزول روح القدس منائی جا رہی ہے، اور آج اس خوبصورت موقع پر آپ میں سے کئیوں نے اپنی کلیساؤں میں جہاں کہیں آپ جاتے ہیں اور ممبرشپ ہے، کلام خدا کو سیکھا ہوگا، لیکن آج یہ ڈبل ڈوز خدا کے روح کی تحریک سے آپ جو اسکائپ آئی ڈی پر اور ہمارے ساتھ فیس بک کے کئی پیجز پر ہیں، اس خوراک کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بائی چانس یا حادثاتی طور پر قطعی طور پر نہیں ہے، یہ خدا کی عین مرضی کے مطابق ہے۔ جس صاحب نے آج کلام سنانا تھا مجبوری بن گئی، لیکن کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا کیا یہ آپ کے لیے ممکن ہے، کیا یہ آپ کے لیے ممکن ہے، کیا یہ آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن آج صبح کچھ ایسی ایمرجنسی بنی ان کی طرف سے کہ ان کا میسج آیا کہ میں اویلیبل نہیں ہو پاؤں گا الیکٹرانیکل ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، اور پھر مجھے خداوند کے حضور ٹھہرنا پڑا تاکہ اس موضوع پر آپ کے ساتھ مل کر میں سیکھنے والا ہو سکوں، قبل اس کے کہ میں آج کے دن کی مناسبت سے کچھ کہوں۔ ایک حوالہ جو بہت معروف ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں کہتا ہوں معروف یعنی بہت فیمس یا مشہور ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی توجہ اس حوالے کی طرف نہ ہو، او جی سنیا ہوا ہے، نو نو نو۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تحریری صورت میں تو پلیز آپ کھول سکتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کیا ہے، اور اگر بائی دا وے نہیں تو غور سے سنیے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کیا سیکھ رہا اور کیا شیئر کر رہا ہوں۔ اناجیل کے لکھے جانے کے بعد ہم کلیسائی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں، یوں تو لگتا ہے کہ وہ مقدس لوکا کی انجیل کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ لوکا کی انجیل کے اختتام پر، لوکا کی انجیل سے مراد لوکا کی معرفت ملہم انجیل مقدس، جب اس انجیل پاک کا اختتام ہوتا ہے، مکمل ہوتی ہے، تو کوئی آخری کلمات نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ وہ اختتام ہو رہا ہے، نو۔ لیکن یاد رکھیے متی، مرکس، لوکا اور یوحنا یہ چاروں مسیح خداوند کی سیرت، آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے اناجیل اربع مل کر بیان کرتی ہیں، اور چونکہ لوکا کے بعد مقدس یوحنا
की मार्फत इंजील मुकद्दस भी लिखी गई और उसका भी इन बाकी 3 गवाहों के साथ शामिल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक और एंगल से मसीह की गवाही दे रहा है। और जब ये चारों अनाजील मुकम्मल हो गई, इन चारों गवाहों की गवाही मुकम्मल हो गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ उसका जिक्र हम आमाल की किताब में देखते हैं। लेकिन इंसानी पहलू के एतबार से डॉक्टर लूका, जिसको लूका तबीब भी कहते हैं, पौलुस रसूल के साथ रहा भी बहसियत एक तबीब के, उसकी मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के इख्तिताम को देखें और फिर आमाल की किताब, क्योंकि आमाल की किताब का भी इंसानी मुसन्नफ लूका ही है। तो यूं लगता है लूका की इंजील का तवातर या सिलसिला अब आमाल की किताब में जारी रहता है। वाहिद किताब बाइबल मुकद्दस हमारे पास है जिसमें तख्लीक कायनात से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक हर एक बात बड़ी तरतीब से नजर आती है। लूका की इंजील के बाद आमाल की किताब क्यों नहीं हुई? इसलिए कि पाक रूह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अभी यूहन्ना भी अपनी गवाही लिख रहा है, जब वो मुकम्मल होगी तो फिर आमाल की किताब, क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील में 13 बाब 14 बाब और उसके बाद 15-16 अबवाब में बार बार देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह याद दिलाते हैं कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजूं जो तुम्हारे, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं और वो आएगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें भूली हुई बातें याद दिलाएगा और मेरे बाप की तरफ से भेजा जाएगा। और जब ये वादे यूहन्ना की इंजील में मुकम्मल हो गए, यानी यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, तो फिर उसके बाद अब मसीह के जी उठने के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी बाबत मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा था कि अब तुमको यरूशलेम से बाहर जाना तो है, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक, कौमों और उम्मतों तक रोमी दुनिया का नक्शा पलटना है। लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक के रूह कुद्स का लिबास तुम्हें ना मिले, जब तक पाक रूह से तुम माबूर ना हो, ये दूसरा मददगार आ ना जाए, उस वक्त तक तुम ये काम नहीं करना। गौर फरमाइएगा, मसीह खुदावंद के कहने का मकसद यह था कि अभी मैं जा रहा हूं, फिजिकली जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे देखते हो, लेकिन मैं जब जा रहा हूं और जो दूसरा मददगार भेजूंगा वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। और कब तक होगा? हमेशा तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मतरूक नहीं होगे, तुम यतीम नहीं होगे, बल्कि वो पाक रूह अब तक तुम्हारे साथ होगा। ये वादा सिर्फ उन इब्तदाई शागिर्दों के लिए ही नहीं था, बल्कि उसके बाद हर जमाने के मोमिनीन के लिए जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं, ये वादा उनके लिए भी है। अब जब आमाल की किताब का आगाज होता है तो पहले एक स्टेज सेट किया जाता है कि अब क्या होने वाला है। मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए जाते हैं इस वादे के बाद कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। और फिर ये शागिर्द सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी, जिनमें खवातीन और हजरात भी शामिल थे, 120 की जमात
یروشلیم کے بالا خانے میں یوں لگتا ہے کہ ایک پریئر میٹنگ انہوں نے سیٹ کر دی روح القدس کے نزول کی انتظار کے لیے۔ یہ 10 دن کی دعائیہ میٹنگ، پریئر ریٹریٹ یروشلیم کے بالا خانے میں ہوئی، جہاں پر وہ دعا کر رہے تھے اور انتظار کرتے تھے اس مددگار کے جس کے بھیجے جانے کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا کہ میرے نام سے باپ اسے بھیجے گا۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ اعمال 2 باب میں جب ہم جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے پہلی آیت سے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ آیات اتنی عمیق اور اتنی گہری ہے کہ گہرے سے گہرے سمندر سے بھی کہیں زیادہ اور گہری ہے۔ زندگی بھر کیا جتنا جی چکا ہوں اتنا اور بھی جیوں تو ان آیات کی تفسیر اور تشریح پھر بھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کیجئے مسیح کا وعدہ کہ میں جاؤں گا اور تمہیں ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ مسیح خداوند کسی نئے ریلیجن یا کسی مذہب کو لے کر نہیں آئے تھے، اور نہ ہی آپ نے کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ آپ یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، بیک گراؤنڈ وہ تھی، ان کے ابتدائی شاگرد بھی وہ تھے، ایون یروشلیم کی کلیسیا بھی پیور یہودیوں سے بنی تھی شروع میں جب میں بات کر رہا ہوں، اور بعد میں انطاکیہ کی کلیسیا کے وجود کو ہم دیکھتے ہیں جب یروشلیم کی کلیسیا نے مشنریز بھیجے۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ لیکن مسیح خداوند کے اس وعدہ کے مطابق جو مسیح نے کہا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ اور کوئی مکر یا فریب ہو۔ مسیح نے کہا کہ انتظار کرو، اور اب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلیم کے بالا خانہ میں تھے، اور اس وقت لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی تھے چونکہ یہودی پس منظر سے تھے، مسیح خداوند نے یہودی تعلیمات میں انقلاب پیدا کیا، اور آپ نے ان شاگردوں سے بات کی جن کا پس منظر یہودیت سے تھا، خود آپ کی بیک گراؤنڈ اہل یہود سے تھی، اور اب ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح خداوند اپنے کلام کے مطابق جیسا ہمیں نظر آتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس حقیقت کو، اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہودی لوگ اپنی اس عید کو جو عید برسوں سے وہ ہر سال مناتے چلے آ رہے تھے، اس عید کے منانے کے لیے یروشلیم میں جمع ہوئے۔ عید فصح اور عید پینتیکوست
और जो कुफारा है, यौम कुफारा, ये 3 ऐसी उनकी फीस्ट्स होती थी जिनके लिए मेन फीस्ट, जिनके लिए उनको यरूशलेम आना ही होता था। और अब लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त आया, यानी ये यहूदियों की एक ईद थी, और वो दिन था जब यहूदियों की ईद थी और यरूशलेम में लोग जमा थे। याद रखिए, ये ईद पेंतिकोस्त कलीसिया की नहीं है। हमारे यहां कोई ईद पेंतिकोस्त नहीं है, ये यहूदियों की ईद थी, ईद पेंतिकोस्त। और इसकी बैकग्राउंड क्या है, मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं। और अगर आप चाहें या नोट कर लें, अहबार की किताब और उसका, प्लीज अपने माइक्स बंद कर लीजिए, अहबार की किताब और उसका 23 बाब, और उसकी मैं 15 आयत से 22 आयत तक, लेकिन यह सब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है। 23 आयत यानी 23 बाब की सिर्फ 15 और 16 2 आयात तलावत करूंगा। लिखा है, और तुम सबत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं। और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदाबंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। अगरचे मैं 22 आयत तक उस ईद में जो कुछ होता था आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता था, लेकिन वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा। और यहां उनको क्या कहा गया कि जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना। अब याद कीजिए कि जब यहूदी लोग, इस्राएली लोग, औलादे याकूब की बात कर रहा हूं, जब वो मिस्र की गुलामी से निकले और निकलने की ईद थी ईद फसा। ईद फसा उनकी रिहाई का ऐलान करती है कि हम किस तरह वहां से रिहा हुए। उस रिहाई के ठीक 50 दिन, यानी 7 हफ्ते, और 7 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं सबत, एक हफ्ता सबत का है, और फिर 7 सबतों तक गिनना, और 7 मल्टीप्लाई 7, 7 ज़रब 7 49 है, और फिर 50वें दिन। याद कीजिए, जिस दिन वो मिस्र की गुलामी से निकले, गिनकर उसके 50 दिन के बाद वो हफ्तों की ईद मनाया करते थे। और ये जो हफ्तों की ईद है, इसके लिए लफ्ज जो इब्रानी जबान में इस्तेमाल हुआ है वो शाहुआत है। हफ्ते को शाहुत या शिवा कहते हैं, लेकिन जब हम प्लूरल यानी हफ्ते या हफ्तों की बात करते हैं तो वो है शिवाउत, यानी प्लूरल में। और इसी ईद को, जो शवाउत है, जो हफ्तों की ईद, जो फसल की कटाई की ईद भी कहलाती है, इस ईद को वो 50 के पहलू के एतबार से, यानी ठीक 50वें दिन ये ईद मनाई जाती थी ईद फसा के बाद। और ये फसल की कटाई जब शुरू होती तो उस वक्त हफ्तों की ईद भी थी। और चूंकि
का मतलब है 50 के और पेंतीकोस्त का मतलब 50वां के हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि उसको पेंतीकोस्त क्यों कहा जाता था, क्योंकि ईद फसह से लेकर फसल की कटाई की इस ईद या हफ्तों की ईद के बीच में 50 दिन होते थे, यानी 7 सबत। अब याद कीजिए कि यह वो दिन भी था कि जिस दिन से मुताल्लिक हम ये भी देखते हैं कि इससे पहले खुदा ने सीना पर से अपने लोगों को शरीयत दी है। रूहानी पहलू के एतबार से मैं यूं कहूंगा कि शरीयत वो तहरीर थी जिस तहरीर के जरिया से इसराइल और इसराइल के खुदा के बीच में एक ताल्लुक था कि अगर तुम ये करोगे तो मेरे लोग होगे। आप रूहानी तौर पर कह सकते हैं खुदा और इसराइल का गोया अक्द या निकाह। इसीलिए इसराइल को कई बार रूहानी पहलू के एतबार से दुल्हन कहकर मुखातब किया गया अहदे अतीक में। अब जब हम अहदे जदीद में आते हैं तो जैसे मैंने आबाल 2 बाब का रेफरेंस पढ़ा है, लिखा है रूहुल कुद्स जिस दिन नाज़िल हुआ वो दिन कौन सा था? ईद पेंतिकोस्त, यानी वो ईद जो पहले से अहले यहूद यानी इस्राएली लोग मनाते चले आ रहे थे। उस ईद की बात हो रही है। अब देखिए वो 50वां दिन था जिसका मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया, और इधर मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तो मसीह जिंदा मसीह के तौर पर नजर आते रहे, और जब 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए उसके 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स का नजूल होता है। 40 और 10 50। उधर शरीयत के दिए जाने की भी बात हम एन उसी वक्त देखते हैं जो पेंतिकोस्त था, और इधर अहदे जदीद में हम रूहुल कुद्स के दिए जाने की बात भी उसी दिन देखते हैं जो उस वक्त अहले यहूद की ईद थी बनाम पेंतिकोस्त। हम ईद पेंतिकोस्त आज जब हम कहते हैं कि जी आपको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो, तो फिर लाजिम है कि जो 23 बाब अहबार 23 बाब की 15 आयत से 22 आयत तक के बीच में जो कुछ पाया जाता है फिर वो भी करना होगा, क्योंकि हम ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि पेंतिकोस्त का दिन, ये इसमें कोई आर नहीं है, ये पेंतिकोस्त का दिन है, यानी मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। मैं शख्सी तौर पर, मैं आप पर कोई यानी कोई रोब नहीं है मेरा और कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं मेरे लिए ये ईद पेंतिकोस्त नहीं है, मेरे लिए ये ईद नज़ूले रूहुल कुद्स है। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है, इसलिए मैं इसको अब नज़ूले रूहुल कुद्स कहूंगा, क्योंकि मैं ईद पेंतिकोस्त के मुताबिक ईद में जितने भी काम किए जाते थे वो नहीं करता। मैं अब इस नए अहद में हूं जो खुदा ने मसीह के वसीला से और मसीह के खून के वसीला से मेरे साथ और कलीसिया के साथ बांधा है। यूं मसीह का खून गोया खुदा
اور انسان کے بیچ میں وہ عقد ہے جس سبب سے کلیسیا اب مسیح کی دلہن کہلاتی ہے۔ اب روح القدس کے نزول والا دن تو عید پینتیکوست تھا اہل یہود کا، لیکن آج جب میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں عید نزول روح القدس آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ آئے تو آپ دوسروں کو کہہ دیجئے، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ عید پینتیکوست ہی کہیں، لیکن جو عید پینتیکوست کے جو باقی فرائض تھے ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا، جیسا تورات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت ساری کلیساؤں میں بڑے بڑے بینرز جن میں یہی کہا جاتا ہے عید پینتیکوست مبارک ہو، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں یا عید نزول روح القدس منا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پینتیکوست کا دن ضرور ہے، لیکن وہ فیسٹ نہیں ہے جو اہل یہود منایا کرتے تھے، ہم وہ نہیں مناتے، اور اگر مناتے نہیں تو پھر ہمیں وہ عید کے لفظ کا بھی استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم عید نزول روح القدس کہیں۔ سیکنڈلی، مسیح خداوند نے کہا تھا روح القدس کے نزول کے تعلق سے، اب روح القدس نازل ہو گیا، 2000 سال سے زیادہ سال ہو گئے، روح القدس کا نزول ہو گیا اعمال 2 باب میں۔ لیکن روح القدس کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ میں غیر زبانوں کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں کون ہوتا ہوں جو اگینسٹ ہوں؟ نو اینڈ نیور۔ لیکن کیا خدا نے روح القدس صرف اس لیے دیا تھا؟ نو۔ تو پھر روح القدس کا نشان کیا ہے؟ مسیح خداوند نے روح القدس کا نشان کیا دیا ہے؟ اعمال 1 باب اور اس کی 8 آیت، وہاں روح القدس کا نشان ہمیں ملتا ہے۔ باقی سب کچھ ہو، ساری نشانیاں ہم میں ہوں جو مین میڈ ہیں، لیکن جو مسیح نے سائن دیا اگر وہ مجھ میں نہیں تو پھر میں کون ہوں؟ خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعمال 1:8 یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے آسمان پر جانے سے پہلے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب روح القدس نازل ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آپ میں سے وہ گزرے کل اور آج واٹس ایپ پر بھی میرے اس میسج کو سن چکے ہیں، یوٹیوب پر بھی سن چکے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور آپ جو میرے ساتھ ہیں، کئی دفعہ آپ نے بھی مجھ سے سنا کہ یسوع نے جب یہ کہا کہ روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اس سے مراد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ تمہارے مسلز موٹے موٹے ہو جائیں گے اور تم باڈی بلڈر ہو جاؤ گے، ریسلر ٹائپ۔ نو نو نو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سکا تیلا ہو اور جب روح القدس نازل ہوگا تو تم موٹے ہو جاؤ گے۔ نو، اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے۔ قوت سے مراد یہاں پر دلیری ہے، جرأت ہے، ہمت مرداں ہے، کیونکہ اس قوت کے بغیر تم بزدل ہوگے، اور جب وہ قوت نہ ہو تو مسیح کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب وہ قوت آ جاتی ہے تو 3 بار انکار کرنے والی شخصیت اب اتنی دلیر ہو جاتی ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے میرے مالک، میرے ربی، میرے استاد کو مصلوب کیا، اب
कुछ दिनों के बाद, 1 महीना 20 दिन के बाद, वो इतना दलेर हो गया रूहुल कुद्स की मामूरी के बाद कि उसने इतनी दिलेरी से मनादी की, ये परवाह नहीं की ये लोग मेरा क्या करेंगे। इतनी दिलेरी से कि 3000 लोग खुदाबंद यीशु मसीह के कदमों में आ गए एक ही वाज के वसीला से। मसीह की ज़मीनी जिंदगी के दौरान, मसीह की ज़मीनी जिंदगी के दौरान 3000 लोग कभी भी मसीह के पास नहीं आए। लेकिन आप जानते हैं कि मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अब भी मसीह काम कर रहे हैं, लेकिन पाक रूह की सूरत में, मुकद्दस पतरस की जिंदगी में होकर, मेरी और आपकी जिंदगी में होकर। और अब पाक रूह की कुदरत से मसीह खुदावन ने मुकद्दस पतरस को इस्तेमाल किया और 3000 लोग मसीह खुदावन के चरणों में आ गए। ये रूहुल कुद्स का काम नहीं तो और क्या है? कुव्वत से मुराद दिलेरी है, जोरत है। आगे क्या लिखा है? जब तुम कुव्वत पाओगे, जब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? यरूशलेम और तमाम यहूदिया, यरूशलेम आप जानते हैं कितना मारूफ शहर है, खुदावंदा शहर, दाऊद का शहर। और आप जानते हैं यहां खुदा का घर, हैकल बनी थी। कितना इस वक्त भी वहां तनाजा है आप जानते हैं। यरूशलेम और तमाम यहूदिया, यहूदिया प्रोविंस यानी सूबे का नाम है, जिसमें यरूशलेम भी और बैतलहम भी पाए जाते थे। ये मारूफ शहर है, और भी थे लेकिन मारूफ। और फिर सामरिया, आप जानते हैं कि यहूदी लोग सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। क्यों? इसकी वजह अभी बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं है। और मसीह ने कहा था जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, ओ सिर्फ तुम यरूशलेम में ही नहीं बल्कि पूरे यहूदिया के सूबा में, और उसके बाद वो लोग जिनको गोया तुम अछूत समझते हो उन लोगों में, और उसके बाद जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। तो रूहुल कुद्स का निशान क्या हुआ जी? इस आयत के मुताबिक यीशु ने क्या कहा कि तुम दिलेरी पाओगे, कुव्वत पाओगे, और उसके बाद जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। रूहुल कुद्स गवाही का रूह है। आज हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की इस ईद को मना रहे हैं। हम खुश हैं कि खुदा का रूह मुझ में है, मसीह पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में है। हम खुश हैं। लेकिन जो निशान पाक रूह का मसीह खुदावन ने दिया, क्या वो निशान मुझ में, मैं अपने बारे में सोचता हूं कि वो निशान मुझ में है? आपकी अपनी मर्जी। अगर आप सोचना चाहें तो अपने बारे में सोचें कि बाकी सब कुछ है, लेकिन क्या रूहुल कुद्स का निशान यीशु की गवाही, ये निशान भी है मुझ में कि नहीं है? कहीं इंज ते नहीं कि अन्ना रेवड़ियां वंड दावे ते मुड़ थुड़ के अपने दे विच ही। कई बार ये मुहावरा मुझसे सुन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये गवाही, तुम गवाह हो ना, वो गवाह ही नहीं जिसकी गवाही ना हो। और जब तुम्हारे पास गवाही है तो ये उन ही लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी गवाए हुए हैं। ये गवाही उन लोगों के लिए है जो बेगवाह हैं, जिन तक गवाही का काम नहीं हुआ। ओ मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, हम खिदमत साथियों,
यह सिर्फ एक पहलू था जिस पर आज मैं बात कर रहा था। सोचें कि हम ईद नज़ूल रूहुल कुद्स मनाते हैं रोजे पेंतिकोस्त को, लेकिन यीशु ने जो रूहुल कुद्स का निशान दिया है, वो निशान मुझ में है कि नहीं? सोचना है। क्या मैं यीशु का गवाह हूं? क्या मैं यीशु की गवाह हूं जहां कहीं मैं जाता या जाती हूं? क्या मैं ऐसे मौके ढूंढता हूं और ढूंढती हूं कि किसी ना किसी को रूहानी तौर पर टीका लगाऊं? टेका नहीं लगाना, टीका लगाना, पाक रूह की तहरीक से। और क्या किसी ना किसी को गवाही हम देते हैं? एक मिसाल इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था मेरी मां ने मुर्गियां रखी हुई थी, और जब एक मुर्गी के अंडा देने का टाइम आता ना, तो वो कुट 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 पड़ा कुट 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 पड़ा करती चली जाती थी, और मेरी मां को पता था कि अब वो अंडा देने लगी है, और उसका ये शोर शराबा इस बात का इजहार था कि अब अंडा देगी, और वो अंडा देती थी। मेरे अजीजों, वो जनने के से दर्द कहां है आज? कहां है वो खोए हुए लोगों के लिए पेन्स हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में? कितनी ज्यादा हम खोए हुए लोगों के लिए दुआ करते हैं, और उन लोगों के लिए जो उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम तन गोश रहते हैं, कितनी दुआ करते हैं। चर्च बिल्डिंग्स, साउंड सिस्टम्स, प्लॉट्स, और पता नहीं किस किस के लिए हम नीले पीले नोट देते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि यह गलत है, ना 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 ना, लेकिन कितना पैसा हम एवेंजलिज्म यानी गैर मसीही लोगों में बशारते इंजील के लिए देते हैं, यह जरा सोचना है। इंजील की बशारत के लिए गैर मसीही लोगों में हम कितना देते हैं, सोचना है। पाक रूह गवाही का रूह है। अजीजों, अगर आज इस दिन, आज के इस कलाम की रोशनी में हम खुदा के साथ कमिटमेंट करें और रेडी हो जाएं कि मैं आज से जहां कहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं दूसरों के साथ सलीब के पैगाम को बांटूंगा और बांटूंगी। मैं समझता हूं इससे बढ़कर रूहुल कुद्स की इस ईद के मनाने में कोई और खुशी नहीं है, और ना ही इससे बढ़कर कोई और खुशी रूहुल कुद्स को है। पेंतिकोस्त की ईद मनाएं या जो मर्जी करें, अगर हम रूहों की निजात के लिए गवाही का काम नहीं करते, हम जीरो है, अंडा, नथिंग। खुदावंद आज के इस कलाम और इन खरी खरी बातों के वसीला से मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए, ताकि हम उन लोगों के लिए जो मसीह के बगैर हैं, रखना में खड़ा होकर दुआ मांगने वाले हों, क्योंकि उनकी अक्लों से और उनकी आंखों से और उनके दिलों से पर्दों के उतरने की जरूरत है, ताकि वो मसीह खुदावंद को पहचान सके। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। एक बार फिर ईद नज़ूल रूहुल कुद्स आप सबों को मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।